जी अस्सलाम वालेकुम everyone. We're gonna wait for another 2 minutes because अभी भी लोग जो है वो connect हो रहे हैं. जी Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everybody for taking out the time, especially to our speakers who tend to be very busy and took out the time to bless us with very key information on urban development. और जो है today's topic is basically focused on understanding कि urbanization in Pakistan जो है वो policy level पे, strategic level पे, tactical level पे किस तरह जो है वो हमारी government और बाकी policy makers perceive करते हैं, and then also understand from these experts how to build sustainable cities and special economic zones, because we have several regional initiatives that are coming in, which is CAREC, China's Belt and Road Initiative, which is manifestation in Pakistan is China-Pakistan Economic Corridor. और उसमें जो है जब हम सीपेक के बारे में भी बात करते हैं तो there are a lot of roads that are being developed, there are a lot of cities जहाँ पे वो roads connect करते हैं, और हम अपने आप पाकिस्तान जो है वो अपने आप को एज अ ट्रांजिट इकोनॉमी जब विजुलाइज करता है तो उसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे पाकिस्तान जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकता है. तो इस वजह से जो है हमने ये टॉपिक की सिलेक्शन की, बिकॉज आई थिंक this is one of the relevant topics that is most under discussed within our policy circles. Before starting and opening the floor for the speakers to introduce themselves, I would like to thank Global Think Tank Network and Opportunity Teams जो जिनके efforts की वजह से जो है इस तरह के webinars जो है वो possible हो सकते हैं possible bane hain. And Opportunity, let me give you a short description of both organizations. Global Think Tank Network is an 8 years old think tank platform which focuses on public policy related to socio-economic development. And Opportunity, for whom I am the CEO and founder as well, is a strategy and management consulting firm focusing on connecting experts with different problems in Pakistan and China. और हमारा बड़ा ज़्यादा focus जो है वो CPEC पे भी है. So now opening the session for speakers to introduce themselves, I would like to start with Dr. Naveed Saab. अगर आप introduce कर लें. I'm Naveed Iftihar. I've done PhD in urban affairs and public policy, and my earlier education was in economics. And so my interest is in urban economics as well as urban policy. And I teach, I do research, I do consulting relating to issues. Thank you. Thank you, Ji. Asad Saab. Ji, thank you. I did my PhD in engineering and master's in urban and regional planning, but I was also part of the former CSP, which was the forerunner of the DMG group, and I started as chief in the Punjab Planning and Development Department during the early 70s. Then I moved on to the Planning Commission, where I was chief of rural, urban and regional development. Then I went as an urban development specialist in the ADB in 1982 and remained there for about 22 years. Retiring as Director General, I have been involved in development of cities and mega cities all over Asia. And then for 4 years, I was member Planning Commission 2004 to 8, and I'm the founding director and senior fellow of GTTN. Mashallah, sir, we are very blessed to have you, and thank you for taking out the time. And inshallah, I'll be asking you a lot of questions in terms of history of the urban development in Pakistan. Ms. Asya, if you can kindly introduce yourself. जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिया सादिक है. I'm an architect planner by training,
इस वक्त मैं KU Leuven यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम में PhD कर रही हूँ. अपने टॉपिक जो है वो मेरा फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरफेस मेकिंग ऑफ सिटीज है. वैसे मैंने आई एम एसोसिएट प्रोफेसर एट NED यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग. इसके अलावा गुज़श्ता 20-25 साल से कराची शहर में बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत सी रिसर्च और मोस्टली टू डू विद अर्बन इश्यूज उन पे मैंने काम किया है. I have several publications. I've presented them in different places. Or I think आज आप चाहेंगे कि मैं I will not be talking about the formal side of things because I think there are other experts. I'll be talking more from the grassroots perspective and the process of change as the citizens look at it. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. नहीं, I think thank you, Dr. Asya. It's a pleasure to have you, and I think the informal sector. Nobody talks about informal sector, interfacing informal sector when talking about urban development. So, inshallah, we'll be asking questions from you on this. Hassan Daud Bhatt sir. Assalamu alaikum. I work as CEO of Khyber Pakhtunkhwa Board of Investment. And prior joining government of Khyber Pakhtunkhwa, I was working in the Planning Commission as the project director, China-Pakistan Economic Corridor. I was a diplomat in China, and in between, I teach in some private sector universities, both in Islamabad and also in Peshawar. I worked as part of the team, technical team, and also steering team for Gawada City Master Plan and also CPAC long-term plan. I was partially engaged with the monographic study, and since the start of the industrial cooperation, I have closely been associated with the SEC's development and how to take this industrial cooperation and the CPAC. Thank you, Hassan Saab. We're really lucky to have you. I know you're really busy and जो है आप एक key office संभाल रहे हैं इस वक्त, and you have multiple projects to juggle. But thank you for taking out the time. So now starting the session, मैं चाहूँगा कि नवीद साहब, we start with you, क्योंकि आप पे जो है वो काम कर रहे हैं and looking at the urban development. So what I want is specifically for our viewers to understand the overall landscape of policy level gaps in urban development और policy makers इसको किस तरह perceive करते हैं, because I think a lot of us are completely unaware of the fact that how important is the role of cities in economic growth. Thank you. Thank you, Hamza. I think that's a good question in a way that when we look at Pakistan cities, I think it's evident that we've never considered cities as engine of growth and prosperity. And when I talk about growth, it's not just mean economic growth. It means, livability. It means functioning of cities. I think when we talk about growth and so that growth and development actually emanated from urban centers around the world. You talk about China, you talk about other areas. There is other debate. I won't go into that academic debate and urban, but that's a totally different topic. Coming to Pakistan, definitely हमारे यहाँ cities का urban policy कभी focus रहा ही नहीं है. And when we talk about cities, our focus has only been on infrastructure development. Or infrastructure के अंदर भी we only know constructing, flyovers or widening roads. These ecosystem actually. So cities are meant to function. And another important aspect that we need to understand is in Pakistan, when we talk about cities, there is a recent trend that we want to beautify cities. And that the way we beautify, हम गमले लगाते हैं, हम फूल लगाते हैं सड़कों के ऊपर. So I always tell that cities are beautiful when they serve people. Cities are beautiful when they are functioning actually. So city has to function. Cities are center of economic activities. तो urban policy जो है वो totally ignored है. जी, तो उसमें जो totally ignored aspect है वो generally रहा है कि cities के अंदर जो हमारी economic policy है, the way our economic policy was mainly focused on very super, national level, sub-national level, and लेकिन हमारे यहाँ जो city level की urban policy है वो that was totally missing.
और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस होने की वजह से सिटीज की फंक्शनिंग, और आई जस्ट गिव यू 2-3 एग्जांपल्स एंड आई आल्सो रिलेट इट विद SEZs और CPEC एज वेल, कि जब हम CPEC की भी बात करते हैं तो अभी तक आपको सिटीज का नैरेटिव नजर नहीं आता. यू विल टॉक अबाउट SEZs. SEZs are out of cities, they are closer to cities. Like in Peshawar, if we talk about Rashkai SEZ, तो ठीक है, रशकई में तो हम काम कर रहे हैं. But what is our strategy for Peshawar actually? So Peshawar में अभी भी जो commercial space है, this is less than 2% actually land use. तो अगर आपने SEZ में इंडस्ट्री लग भी गई तो कॉमर्स जो है वो शहर के अंदर होनी है. Are we creating such spaces, commercial activities in Peshawar? Probably not yet. हमारा हयाताबाद है, वहाँ इतना बड़ा सिविक सेंटर है, और उसकी जाके एक्टिविटीज देखें कि उसको कैसे रीजनरेशन करनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. अच्छा, यहाँ से आप आगे चले जाएं, आप फैसलाबाद आ जाएं, वहाँ रिलेटिवली बेहतर काम कर रहा है वो इंडस्ट्रियल जोन भी. अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट कि यहाँ पर अभी तक कोई वेयर हाउसेस बने हैं, अगर CPEC ने फंक्शन करना है तो क्यों नहीं बने, ना कोई सप्लाई है ना डिमांड है. तो सिटीज जो हैं वो उन्होंने ये थिंक करना होता है कि व्हाट इज कमिंग अप एंड हाउ कैन दे रिस्पॉन्ड टू इट. सो अगर आप, आई एम वर्किंग ऑन ग्वादर फॉर सम टाइम, तो ग्वादर में आप CPEC के ऊपर आप फोटोज देखते हैं, समटाइम्स वी सी फोटोज ऑफ रोड्स और लाइट्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप में से जो लोग जाते हैं वो ग्वादर टाउन की कभी हालत देखें आप. तो जो ओरिजिनल लोग रह रहे हैं, पहला तो जो मास्टर प्लान जो है दैट वाज वेरी रॉन्ग एक्चुअली अप्रोच. अर्लियर द प्लान वाज टू रीलोकेट लोकल ग्वादरी पीपल, लेकिन अभी जो प्लान आया है उसमें फॉर्चुनेटली दे हैव डन द गुड थिंग, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा उस कल्चरल टाउन को. बट व्हाट आई वांट टू से कि हम जब शहरों की बात करते हैं तो लिवेबिलिटी और फंक्शनिंग जो है वो कभी इंपॉर्टेंट रही नहीं है हमारी नज़र में. हमारी नज़र में सड़क बनाना इंपॉर्टेंट है, सड़क को जो है वो वाइडन करना इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर एकेडमिक रीजन पे भी मैं आऊँगा, लेकिन असल बात यह है कि अर्बन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हम ये नहीं कहते लोग करप्शन करना चाहते हैं, लोग जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं, बट बिलीव मी, आई टॉक टू पीपल, दे से दैट वी आर फर्स्ट टाइम हियरिंग, दे हैव नेवर रेड एनी बुक ऑन सिटीज जो पॉलिसी मेकर हैं. और अगर बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग फोकस रहा है सिटी मैनेजमेंट, और उस सारे प्रोसेस के अंदर वी एक्चुअली इग्नोर्ड कि हमारे सिटीज का पोटेंशियल क्या है. सो आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल. इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जो है कैपिटल सिटी और हब होना चाहिए था टेक्नोलॉजी का और ऐसी सर्विस इंडस्ट्री का, लेकिन वो नहीं बन पा रहा. और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है हमारी अर्बन प्लानिंग और जोनिंग रेगुलेशंस है. कि जैसे हमने फैक्ट्रीज को कभी कहा अर्लियर 20th सेंचुरी में कि वी डोंट वांट बिजनेसेस वर्किंग इन रेजिडेंशियल एरियाज. सो इन 21st सेंचुरी वी वांट टू डू बिजनेसेस. हम आज भी उनको कह रहे हैं कि आप घर के अंदर बैठ के मूवी देख लें और आप पार्टी कर लें, but don't develop a software at home. So it means we are not allowing them to work sitting in a residential area. तो ये सारी बातें वो चल के अगर आप और मजीद पहुंचते हैं तो थोड़ी सी हमारी जो मैनेजमेंट कमर्शियल सेंटर्स की है कि वो क्या है. अगर आप ब्लू एरिया देखते हैं, कराची के कमर्शियल सेंटर्स देखते हैं, तो दुनिया भर में जो सिटीज होते हैं उनके बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनकी एक सेपरेट गवर्नेंस होती है. दोज आर कॉल्ड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स. और वो गवर्नेंस बनाने का मकसद ये होता है कि वो उन एरिया की डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ के बारे में बात करें. यहाँ पे जो है वो हमने ना बिजनेस कम्युनिटी को सिटीज की गवर्नेंस में शामिल किया है, ना हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल किया है. तो आई पर्सनली थिंक अर्बन पॉलिसी इज अ टोटल इग्नोर्ड एरिया. व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग इन सिटीज, दोज वर ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. और अर्बन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग और फंक्शनिंग जो है इन अ नंबर ऑफ वेज दैट्स मिसिंग फ्रॉम आवर नैरेटिव, फ्रॉम CPEC as well as general economic development. जी, थैंक यू. आई थिंक वो दरमियान में जरा सा कोई साइबर अटैक चल रहा है हम पे, तो वो थोड़ा सा हम उसको एड्रेस कर रहे थे. आई एम रियली सॉरी. अच्छा, सो नवीद साहब, आई थिंक a lot of your answers are basically focused towards कि even मेरे ख्याल में हसन दाऊद साहब का इसमें अब वो गवर्नमेंट साइड से वो आ जाते हैं. अब हसन साहब, हम मेनली इवन CPEC पे बहुत अर्ली टाइम पे जो है, जब मैं भी इन्वॉल्व हुआ, तो हम SEZs और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं. और जब हम मास्टर प्लान पे बात करते हैं तो सिर्फ गवादर की बात होती है, जबकि
we invested significant resources within Lahore on Orange Line Metro, जो कि to a certain extent चले needed था, we understand. But why did we not talk about new cities? और जो है किस तरह एक ओवरऑल अप्रोच लॉन्ग टर्म प्लान पे भी चूंकि आपने डायरेक्ट काम किया हुआ है, तो अर्बन डेवलपमेंट को सीपेक के लेंस से आप किस तरह देखते हैं? Thank you so much. It's always a difficult task to speak on behalf of the government, especially in the presence of eminent speaker, जो के जिनके पास data wise knowledge होती है, and but I would just begin by quoting Deng Xiaoping, and he would in this forum perhaps would say that it does not matter how fast you're moving as long as you're moving. And this is perhaps a line to take in terms of understanding the government's ability and desire to improve the urban planning. But this perhaps would not happen overnight. I'm sure you would recall World Bank statement on Pakistan's urbanization, stating it as messy and hidden, and messy in terms of its sprawl and also hidden in terms of moving beyond its jurisdiction. So with this in mind, we understand the challenges on part of the government. We understand the housing quality is poor and its affordability is difficult, water and sanitation. And I was just looking at some of the pictures being shown on local media about Karachi, and then of course transportation, health, education and land management. But these challenges, the government at all levels, starting from the P&D departments and also moving perhaps up to the Prime Minister office, are aware. And that is why when Prime Minister speaks on the Naya Pakistan housing scheme, he has given directions to all provincial government to work on the urban planning and long-term mapping of the cities. देखिए, एक बात तो क्लियर है इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन दैट हमारी जो इकोनॉमी है उसका 55% ऑफ आवर जीडीपी इज ड्रिवन थ्रू अर्बन सेंटर्स, एंड देयरफॉर अगर हम इनकी ओवरऑल प्लानिंग को, इनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर लेंगे, परहैप्स दैट वुड हेल्प the overall improvement in the GDP immensely. But having said that, ये बात जरूर ज़हन में रखिएगा, and I keep saying this everywhere I speak on, that in less than perhaps 30 years, Pakistan is going to be 100 years old, and perhaps by that time, जब हम long term planning पे काम कर रहे थे CPEC पे, I vividly remember we had a discussion, lengthy discussion on Chinese. और initially उनका ये remark था कि with the rate that you are probably multiplying your population, perhaps by 2047 we will be double to what we are. Yeah. और आप इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि जब इस तरह आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही हो तो किसी भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फेल होना इज राइटिंग ऑन द वॉल. दिस इज व्हाट आई बिलीव. आई मीन what I'm saying is perhaps my own opinion on the overall urban development of Pakistan. But having said that, there is a growing realization on part of the government कि हमें urban planning को, अपनी city development को, and similarly, and not just urban planning, perhaps peri-urban planning also, and the larger overall economy को, say in terms of overall forestation, tree plantation, को अब लार्जर डिबेट का हिस्सा बनाया जाता है. और मैं आपको विद कन्विक्शन ये बात कह सकता हूं कि जब ओवरऑल बजट बनते हैं तो इस फैक्टर को से परहैप्स इन लास्ट 2 years, और जब मैं प्लानिंग कमीशन में था वहां पर भी इनको इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग डाला गया है. अच्छा, जहां तक आपका क्वेश्चन है कि सीपैक के अंदर इसको कंसिडर क्यों नहीं किया गया, देखें अगर आप सीपैक की मोनोग्राफिक स्टडी लेन 2014 की, 2015 perhaps it was in the 5th JCC that it was approved. उसके अंदर पूरा एक चैप्टर है रूरल अर्बन सिनर्जी का, because largely CPEC speaks about
economic growth, and it won't happen unless you create that rural-urban synergy and also develop your cities and urban centers based on what is required. और जब आपने आप खुद इस पे क्लोजली एसोसिएट रहे सीपैक के साथ, स्पेशली एट एनडीयू, आपने ये देखा होगा कि जो बॉटलनेक भी आइडेंटिफाई किए गए थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थे. नेचुरली एनर्जी वाज वन एस्पेक्ट, बट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज was one of the perhaps impeding reason for our growth, or in terms of accelerating and to reach to a point जो कि decide हुआ है. There is an end state of CPEC, and by 2030 we have to reach the end state. आपने एक sort of invest करना है in your overall development. अब पाकिस्तान in terms of its investment on urbanization and urban planning शायद थोड़ा सा बहुत पीछे है अपने साउथ एशियन या एशियन कोलीग्स से. So जब हम सीपैक की प्लानिंग में गए, and I'll just take one more minute of yours, तो उसके अंदर ये फैक्टर जो यहाँ पर अभी बताया गया इसको क्लोजली किया गया. और इसलिए अगर आप कंपेयर करें फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन विजन एंड ऑल्सो PSDP में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो बतदरीज बढ़ा है, एंड वी हैव नाउ इंक्रीमेंटली मूविंग towards that side. हमें बतदरीज during the discussion, and please take me in the same essence that I am actually stating this, ये बात बतदरीज बताई गई कि it does not matter whether the cat is black or white as long as it catches the mice. और perhaps यही philosophy हमें urban planning में डालनी पड़ेगी ताकि इसको एक्सेलरेट किया जाए. वी नो द कंस्ट्रेंट्स, वी नो द चैलेंजेस, सिर्फ इसका ये है. और एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्लानिंग वर्क बोथ at perhaps at the federal level, not too much at the district level, but perhaps at a provincial level, and उसकी सिर्फ implementation पे जाना है. And I must also acknowledge the effort of the donor agencies, जिसके अंदर World Bank, UNDP, USAID ये क्लोजली काम कर रहे हैं कि हमारे जो अर्बन प्लानिंग यूनिट्स हैं इन ईच PND डिपार्टमेंट इन ऑल प्रोविंसेस, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए. यकीनन उनकी कैपेसिटी एज वी स्पीक उस लेवल की नहीं है टू अचीव टू द एंड स्टेट दैट वी आर ड्रीमिंग फॉर और वाइंग ऑफ, बट परहैप्स इंक्रीमेंटली, फेज बाय फेज, by touching each pebble we are moving and crossing the river. So this is all I have to say at this point, and we'll continue this discussion later. बिल्कुल ठीक है. Thank you हसन साहब for such a detailed overview. इस पे मैं I'll come back to you in question answer session जो कि बिल्कुल आखिर में होगा. But before coming to next question from Hassan साहब, let me sort of take this discussion to Miss Asia Sadiq. Miss Asia, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आप जो है वो बेसिकली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर का इंटरफेस जो है उस पे रिसर्च कर रहे हैं. एंड गिवन द केस ऑफ पाकिस्तान, nobody actually knows, there are only estimates. कोई कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद में तो कम है, पिंडी एंड पेशावर में मिला के देयर इज वो ओवरऑल हेयर से नॉलेज के कोई कहते हैं 20% ऑफ GDP जो है वो इनफॉर्मल है, कोई 50% तक भी कह देते हैं. तो जब अर्बन डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, और especially in the case of Pakistan where the economic contribution from informal sector is so huge, what sort of tools can be used to, number one, incentivize them to come into formal sector, and number two, चूंकि वो एक already engine है तो उस engine को be further facilitate करना. So and then since you are doing research, तो और कौन से important ऐसे data points हैं या tools हैं जो you think should be sort of implemented within Pakistan? जी थैंक यू हमजा. देखिए मुझे हमेशा बड़ी हैरत होती है कि जब हम ये कहते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को हम शामिल नहीं करते प्लानिंग में, क्योंकि उस इनफॉर्मल सेक्टर को मैं और आप और मेरे ख्याल स्क्रीन पे मौजूद तमाम लोग हर रोज अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं.
चाहे वो ठेले वाले से चीजें खरीदना हो, चाहे घर में आए हुए लोगों से काम करवाना हो। और वो तमाम इकोनॉमी जो है वो मेरे ख्याल में उसके जो एक बहुत बड़ी वजह है नॉन रिकग्निशन इज आई थिंक द बिगेस्ट रीजन कि आज तक वो प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाई। सो एंड ऑल्सो द लिटरेचर टेल्स अस, कहीं पे भी दुनिया में आप अगर फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरफेस की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी और बुनियादी चीज है वो है कि सबसे पहले माशरा एट लार्ज एंड ऑफ कोर्स द पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर्स स्पेशली रिकग्नाइज करें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा माशरे का या इकोनॉमी का इनफॉर्मल तरीके से, या जिसको इनफॉर्मल हम इन रिस्पॉन्स टू द फॉर्मल कहते हैं, अगर आज को आप फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को खत्म कर दें तो वो सभी चीज रियलिटी का हिस्सा बन जाती है। सो आई थिंक इस रियलिटी को रिकग्नाइज करना, दैट फॉर मी इज नंबर वन। एंड देन द सेकंड वे टू डू इट कि भाई उसका टूल क्या है, उसको आप किस तरीके से करेंगे, तो उसका तो बड़ा एक मेरा ख्याल है ऑब्वियस और सिंपल सी चीज है, विच इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट। आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर कि अभी जो बता रहे थे स्पीकर कि प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिटीज। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिटीज है, क्योंकि उसमें भी अमूमन प्रॉपर्टीज एंड ओनरशिप्स को ज्यादातर डॉक्यूमेंट किया जाता है। एंड वंस अगेन ऑल दैट इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड इनफॉर्मल सेक्टर स्टेक होल्डर्स आर लेफ्ट आउट ऑफ दैट। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जबकि आपने रिकग्नाइज कर ली रियलिटी और इनफॉर्मल सेक्टर या ग्रास रूट्स की अपनी रियलिटीज को, उसको आपने डॉक्यूमेंट किया, सो देन ऑफ कोर्स कम्स द बिग चैलेंज व्हिच इज ऑफ्टन अ पॉलिटिकल चैलेंज कि उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे माशरे के अंदर। आप उनको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम तैयार हैं उसको रिकग्नाइज करके रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज देने के लिए विच आर ऑन इक्विटेबल टर्म्स टू आवर फॉर्मल प्लान्स। क्या हम उनको फॉर्मल प्लान्स का हिस्सा बनाने के लिए राजी हैं, एंड आर वी ओपन टू दैट, बिकॉज इसमें पॉलिटिकल डिसीजन एंड आई थिंक पॉलिटिकल विल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग रोल। अच्छा, इसमें वंस अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इनफॉर्मल सेक्टर की ऑपरेशंस जो किसी भी शहर में है पूरे पाकिस्तान भर में, मगर मैं कराची का आपको एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी वहां गुजरी, मैंने वहां ज्यादातर काम किया है। सदर बाजार जो कि हर पाकिस्तानी शहर में मौजूद होता है, जो कराची का सदर बाजार है, वहां पे हजारों की तादाद में हॉकर्स ऑन अ डेली बेसिस ऑपरेट करते हैं, और उनके ऑपरेशन का जो तरीका है दैट इज वेरी मच in an informal way supported by the formal sector. वो भत्ते की शक्ल में हो, आप उसको जो भी नाम देना चाहें, there is a whole process and a whole hierarchy जिसके तहत वो रोजाना ऑपरेट करते हैं, बेचते हैं, अपना सामान ठेले वहीं पे छोड़ के जाते हैं, उसके बाद अगले दिन आके उसको दोबारा से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। दिस इज एन इकोनॉमी व्हिच रन्स इनटू मिलियंस ऑफ रुपीज इफ नॉट डॉलर्स। मुझे एग्जैक्ट सम मैं इस वक्त आपको नहीं दे पाऊंगी, मगर ये डॉक्यूमेंटेड है थ्रू रिसर्चर्स। आरिफ हसन जो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। हमने एक किताब इस पे लिखी, एंड वी आर अगेन वर्किंग ऑन द इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ सदर बाजार। ये तो रियलिटी है, और इसमें जो हॉकर्स कमा रहे हैं दैट्स वन एस्पेक्ट, मगर जो पूरा ऑपरेशन है इसके अराउंड, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल शामिल हैं, वो भी इसमें से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हासिल करते हैं। मगर जो नवीद साहब पहले बात कर रहे थे कि हमारा चूंकि अर्बन पॉलिसी एंड फोकस इज ऑन ब्यूटिफिकेशन एंड गमले लगा दो, पौधे लगा दो, मगर उससे बढ़ के अनफॉर्चुनेट जो हम काम करते हैं वो ये कि हम लगी लगाई आमदनी लोगों की खराब करते हैं। कराची में सदर बाजार इज एन एग्जाम्पल, जिसमें हर आने वाली हुकूमत का पहला काम ये होता है कि वहां पे एक ब्यूटिफिकेशन ड्राइव चलाई जाती है, और उसका जो हदफ होता है वो हमेशा हॉकर्स को, उनको उठा के फेंक देना, उनको उठा के लाइक डिस्पर्स कर देना। एंड दिस इज ऑल अंडर द मिथ कि ये शहर में गंदगी का बायस है, ये ट्रैफिक के मसाइल का बायस है, which is unfortunately not true. उसमें सदर बाजार के एग्जाम्पल में
अगर मसाइल का कोई बायस है तो दैट्स ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट एंड अ लॉट ऑफ पुअर लैंड यूज पॉलिसीज जो इनर सिटी कोर के लिए होनी चाहिए और मौजूद नहीं है. So, I mean, just to give you an example, कि जब आप ये beautification drives या eviction drives करते हैं, so you actually tend to, मतलब आप बहुत हजारों की तादाद और hundreds of thousands of people जो हैं शहर के, उनको आप डिस्टर्ब करते हैं in the form of families and so on. अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि ग्राउंड रियलिटीज पे रिसर्च बहुत कम की जाती है, और अगर रिसर्च हो भी तो उसका जो डायलॉग होता है स्टेक होल्डर के साथ करने का, उसका अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई कल्चर नहीं है. थियोरेटिकली यस, जब भी कोई डोनर प्रोजेक्ट या लोकल प्रोजेक्ट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का हो, प्रोविंशियल का हो या लोकल, आपको मिलेगा उसके अंदर CSR भी मिलेगा, उसमें आपको environmental impact assessment, all of those things are very nicely and neatly delineated over there. मगर उसको रियलिटी के साथ, वो जो स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट है, उसको समझना है या उसको एंगेज करना है इन द प्रोसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली दैट नेवर हैपेंस. कॉन्सिक्वेंटली अनदर एग्जांपल जो नवीद साहब ने दिया था, अगर डेंसिटी के हवाले से मैं बात करूं, वंस अगेन कराची में 65 से 70% जो हाउसिंग स्टॉक है आपका, वो लो इनकम सेटलमेंट / कच्ची आबादी / इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में है, जिनमें के एक प्रोसेस ऑफ रेगुलराइजेशन इज गोइंग ऑन. मगर बहुत से जो प्लान्स आते हैं, देयर अबाउट हाई राइजेस, एंड दैट्स वंस अगेन कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ सिटी ब्रांडिंग एंड सिटी ब्यूटिफिकेशन. मगर उसका लोकल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी के जो डायनेमिक्स हैं, which is to have cottage industry at home, which is to have the family working in an enterprise, which is to do with women's engagement into the informal economic process and the process of change of the city, उससे उस पूरे process of redevelopment या नई housing का कोई रिश्ता या वास्ता राब्ता होता नहीं. Once again, very simply to do with the lack of research and this whole obsession with the idea of सिटी ब्यूटिफिकेशन एंड डेंसिफिकेशन. मैं कराची के बारे में एक मिथ है कि इट्स अ हाई डेंसिटी सिटी. नॉट एट ऑल ट्रू. कराची इज नॉट इवन अ प्रॉपरली मीडियम साइज्ड मीडियम डेंसिटी सिटी. कराची के कुछ एरियाज हैं विच आर वेरी हाई डेंसिटी, वो कराची के पुराने शहर और कोर के इर्द हैं, मगर उसके अलावा पूरा शहर स्प्रॉल का शिकार है. और कराची जो है वो तकरीबन हैदराबाद तक पहुंचने वाला है विद इट्स ड्यू टू इट्स स्प्रॉल. उसमें दो खराबियां हैं. वन, बिकॉज दैट मीन्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ गुड मास ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक आम आदमी 2 से 3 घंटे बस में गुजारता है दिन के, जिसके अपने एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड हेल्थ इश्यूज हैं. दूसरा जो मसला है, वो जो पेरी अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जो तमाम एग्रीकल्चरल लैंड होता है शहरों के अराउंड, या जो इकोलॉजिकल जोन्स एंड एसेट्स होते हैं, दे ऑल गेट किल्ड एंड सबडिवाइडेड इन द प्रोसेस. आप कराची का तफसीली जायजा लेके देख लीजिए. उसका आउटर क्रेसेंट जो है, at the moment it's all been subdivided and sold as middle to high income housing, evicting large parts of communities which have traditionally and historically been living in those areas. ये इसका एक कल्चरल एंड ह्यूमन कॉस्ट है. मेरा इसके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो मैं आपको रिकग्निशन, रिकॉर्डिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन का कह रही हूँ, आई थिंक नॉट गो ऑन. आजकल के जमाने में, जो कि डिजिटल एरा का जमाना है, जिसमें फ्री नॉलेज एंड फ्री डिसमिनेशन ऑफ ओपिनियन एंड नॉलेज हो गया है, we cannot continue for very long like this. वो generation जो अब पैदा हो रही हैं या जो जवान हैं, they will and they have started to protest globally. जब तक आप उनके employment, basic rights, housing, infrastructure, आप कराची में देखिए, परसों शायद मॉनसून की रेन हुई है, एक दिन, चंद घंटे, वो तस्वीरें शायद आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी, जिसमें गाड़ियां तैर रही हैं. ऐसे हालात में, जबकि सबसे बड़ा जो आपका इकोनॉमिक सेंटर है, जबकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेटेड नहीं है, मुझे तो ऐसी चीज का समझ बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर आसिया, हमारा आई थिंक यू हैव मेड योर पॉइंट वेरी क्लियर, एंड आई थिंक continuation of
what you have replied. So I'm going to ask Asad Saab, because he has been in the policy circles and also has been the top man for urban development, even in Pakistan on a provincial level, national level पे भी. तो असद साहब, तीन चार अब आप सारी कॉन्वर्सेशन सुन भी रहे हैं, एंड वन ऑफ द की क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, बिकॉज नॉर्मली डिस्कशंस जो है वो प्रेजेंट में हो रही होती है, तो बहुत सारी ब्लेम गेम चलती है पास्ट पे, और बहुत आइडियलिस्ट प्लान्स बनते हैं फ्यूचर के लिए, और प्रेजेंट में उसके वो कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 1970s 1980s में जब अर्बन डेवलपमेंट में आप काम भी कर रहे थे और 90s में, तब में और अब की कैपेसिटी में और अप्रोच में आप क्या मेन डिफरेंस देखते हैं? नंबर वन. नंबर टू, जहां तक हम बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट की, तो बहुत सारे शहर, नवीद साहब ने भी जो है मेंशन किया, डॉक्टर आसिया भी मेंशन करें कि जहां पे फॉर इंस्टेंस हाई डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, वहां पे हम वर्टिकल भी तो जा सकते थे, या हमारे क्यों सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, हमारे लाहौर में जो है प्राइम लैंड पे आपको GOR1 पे 8 कनाल के घर मिलेंगे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जबकि वही जो है that could have become business hubs. So I really want to understand these 2 points. Number one is ke past or present में capacity, in terms of capacity, in terms of approach, क्या आपने कोई significant difference या evolution देखी? And number two के ये cities, या being a youngster myself, and I think most of the people understand this के एक CBD होना चाहिए था या vertical हमें जाना चाहिए था, तो हम क्यों नहीं जा पाए और अब भी क्यों नहीं जा पा रहे? थैंक यू जी. बातें बहुत करने वाली हैं, वक्त कम है जी, और आई थिंक आई विल ओनली हाईलाइट some of the things related to the issues that you have raised. First of all, I think we need to understand why urbanization takes place, and this is related to the structural transformation of the economy from the primary commodities to the secondary sector and the tertiary sector, including industry and services. And over the history of time, there have been different transformations which have been taken place, and human communities have reacted to those transformations. Likewise, I think the earlier speakers have also quite well pointed out the issues which are relating to Pakistan, and I totally agree. First of all, that population growth in Pakistan has been very high. और जो areas अभी they constitute Pakistan, उनकी 32 million population होती थी at independence, और अब वो 7 times हो गई है. In 70 years. So in 7 decades, we have become 7 times. Yeah. Or there is an underestimation in Pakistan that we need to control our population. और जैसे हमारे earlier speaker ने बताया, जो यही हालात रहे, and you know, the truncated Pakistan, sans Bangladesh, अभी 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में. तो हम जो तरक्की कर रहे हैं वो बच्चे पैदा करने में कर रहे हैं. तो आई थिंक वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि वी नीड टू प्लान प्रॉपरली फॉर आवर पॉपुलेशन, और उसके लिए अर्बन रूरल दोनों पे असर पड़ता है. अब व्हाई अर्बन रूरल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा क्यों होती है? इसलिए कि रूरल से अर्बन एरियाज में लोग आते हैं कि जॉब सर्च के लिए, किसी और वजह के लिए नहीं आते. और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर पीपल. जब वो यहाँ पे आते हैं, उन्हें जॉब की जरूरत होती है. और अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ प्लानिंग नहीं की कि नए जॉब क्रिएट करें, इतने ज्यादा करें जो लोग जितने आ रहे हैं, जो यहाँ पे हैं, उनके लिए जॉब्स हों. So I think that a very important element, fundamental to urban development, is the adoption of an integrated and holistic approach to the development of the urban areas.
which means that we need to have a multi-sectoral and multidisciplinary approach to the issue. और शुरू से ही जैसे हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने भी हाईलाइट किया है कि ये अर्बन डेवलपमेंट का सेक्टर वाज टेकन ओवर बाय द इंजीनियर्स एंड फिजिकल प्लानर्स, जबकि इसको स्टार्ट होना चाहिए था पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के फंक्शन क्या है सिटी का, कहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है. एक दफा आई वाज इन्वॉल्व्ड इन रिव्यूइंग द मास्टर प्लान ऑफ लाहौर, और मास्टर प्लान उन्होंने फिजिकल प्लानर ने पास्ट प्रोजेक्शन को आगे फ्यूचर में कर दिया हुआ था कि इतने परसेंट ये इतने परसेंट ये. क्यों होगा, वाई? एंड इसमें यह भी बात है कि हम क्या चाहते हैं, कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें हमारी कंपेटिटिवनेस ज्यादा है, जहाँ पे हम दुनिया में भी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और चीजें कर सकते हैं. सो अर्बन एरियाज के स्टार्ट होना चाहिए इकोनॉमिक पोटेंशियल से, और उसके उसको वीव करना चाहिए दूसरे डिसिप्लिन में. दूसरी बात यह है जो आपने भी सवाल किया, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हालत जो है वो ऐसी है कि बेहतर होने के बजाय डाउन हिट स्लाइड हो रही है. गवर्नेंस जो है वो पहले से भी खराब हो रही है. जो पहले सूरत थी वो भी स्टेबल नहीं है. जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो पर्सनल सर्वेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं. पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनमें डिक्लाइन और डिके, और वो जो है ये जो कल्चर है वो पर्सनैलिटी कल्चर, जो पैसे बनाने का कल्चर, जो मुल्ला और फ्यूडलिज्म का कल्चर है, उसमें वो पॉलिटिकल एजुकेशन भी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोई ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो कि लॉन्ग टर्म में हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह जाना चाहते हैं. और एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट थी विजन 2030 जो हमारे GTTN के भी फाउंडर डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर अफसन शेख ने उसको लीड किया था. वो एक बड़ी लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है. मैं आप सारे पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा कि उसे पढ़े तरह, और उसने सब दिया हुआ है रोड मैप टुवर्ड 2030 के कैसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है. और उसमें नॉलेज इकोनॉमी इज द फाउंडेशन फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट. जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हमें तालीम देने की जरूरत है. तालीम ये नहीं है कि वो आंखें बंद करके अरबी में फारसी में हमने कर लें. तालीम ये है कि किन स्किल्स की डिमांड है, उन स्किल्स में उनको ट्रेन करें, और वो क्वालिटी जो है हमारी उसके ऊपर फोकस करें ताकि अच्छी क्वालिटी के लोग पैदा हों. एक ऑस्ट्रेलियन आए थे पाकिस्तान में, वो कहते थे हम यहाँ के लोगों से काम नहीं ले सकते क्योंकि क्वालिटी ठीक नहीं है. सो वी नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड एरियाज ऑफ डिमांड जहाँ पे डिमांड दुनिया में बढ़ रहा है. तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, प्रोफेशनल रिसोर्सेज जिनके क्वालिटी और अर्बन प्लानर्स या दूसरे लोग हैं, वो बहुत ही उसकी खस्ता हालत है, और पुराने जमाने में भी कमजोर थी, आज भी कमजोर है, और इनको मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग देने की जरूरत है. अर्बन स्पेशलिस्ट वो नहीं होता जो एक डिसिप्लिन में ट्रेंड हो, बल्कि उनको सब इश्यूज का जो सोल्यूशन करना होता है. तो हमें बहुत लार्ज स्केल पे कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. और जो रिसोर्स ट्रांसफर है वो हमने फेडरल से प्रोविंशियल तो कर दिया, प्रोविंशियल से लोकल नहीं हुई. लोकल गवर्नमेंट्स को डेवलप करना पड़ेगा, शहरों को डेवलप करना पड़ेगा, शहरों की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा. दूसरी बात, एक शॉर्ट सा कमेंट आपका यहाँ पे मैं लेना चाह रहा हूँ. बेसिकली हम चूंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% जो है वो खवातीन है, तो क्या कभी 70s 80s या अभी तक आपने कभी खवातीन का देखा है कि खवातीन के लिए क्या प्लानिंग है? बिकॉज हमारे इस्लामिक वैल्यूज और जो कल्चरल वैल्यूज है वो काफी ज्यादा इस तरह करके हैं कि खवातीन को लिमिट करते हैं वो मूवमेंट पे. तो सिटीज उनको किस तरह, कभी इस बात पे प्लानिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ फॉर पाकिस्तान अर्बन डेवलपमेंट? जी, ये अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि जो हमारे पाकिस्तान की बात यह है कि हमारे कॉल में और फेल में बहुत बड़ा तजाद है. हमने विमेंस डेवलपमेंट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी.
और अगर ये कहें कि प्लान बनानी है और चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर बड़ा अच्छा लिख देंगे हम, लेकिन फील्ड में कुछ नहीं होगा. और आई वुड गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल. माय डॉटर इज वर्किंग इन द वर्ल्ड बैंक, और वो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट में फ्रंटियर नहीं आई थी. उन्होंने कहा 100 बंदे बैठे हुए थे, औरत कोई नजर नहीं आ रही. और औरतों के ऊपर हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं. बहुत अच्छा बात है कि आपने ये सवाल किया है. वी हैव नेग्लेक्टेड ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर टोटल डेवलपमेंट, क्योंकि औरतों को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे, एंड यू नो सम ऑफ दीज प्रोग्राम जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, दूसरे बिल्कुल. कम्युनिटी औरंगी पायलट प्रोजेक्ट एंड अदर्स, दे आर शोन के औरतें. और ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश के जब उनको इन्वॉल्व किया है तो वो सेविंग भी ज्यादा करती हैं, एंड दे गेट मोर मोटिवेटेड इन कोऑपरेटिव प्लानिंग. सो दिस इज वेरी नेग्लेक्टेड एरिया. बहुत अच्छा किया है कि आपने इस बात की तरफ ध्यान रखा है. एक और बात जो मैं बताना चाहता था कि ये जो हमारी प्लान और सारी जो फिगर्स आती हैं उसमें अर्बन पॉपुलेशन बहुत अंडर रिपोर्टेड है. और उसकी वजह ये है कि शुरू में जब सेंसस हुआ था तो उसने 5000 की पॉपुलेशन विद अर्बन कैरेक्टरिस्टिक के नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जो होती थी उनको अर्बन कहते थे. बाद में उन्होंने ये किया कि ओनली इनकॉर्पोरेटेड एरिया या म्युनिसिपैलिटीज बनी हुई है उनको अर्बन कहेंगे. और उसकी वजह है कि वो बहुत ही अब 37% शो कर रहा है लास्ट सेंसस जो है अर्बन पॉपुलेशन, जबकि मेरा ख्याल है कि ये 50% से भी ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी. और उसकी वजह ये है कि जो हमारे रूरल लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है पॉलिटिकली. दे डोंट वांट कि वो इसको ज्यादा अर्बन शो किया जाए. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, जिसके ऊपर पहले स्पीकर से भी इशारा किया, वो ये है कि हमने ना सिर्फ एग्जिस्टिंग शहरों की प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, बल्कि जरूरत है अर्बन एक्सपेंशन को कंट्रोल करने की, पहली अर्बन एरियाज को इनकॉर्पोरेट करने की, रूरल अर्बन कॉम्प्लीमेंटरिटीज की विद इन ए रीजनल कॉन्टेक्स्ट, कि इसको सबको मिला के करेंगे कि वी आर नॉट अगेंस्ट रूरल डेवलपमेंट, बल्कि प्रॉपर हायरार्की और सेटलमेंट डेवलपमेंट करने के लिए जरूरत है स्मॉल टाउन, रूरल अर्बन सेंटर्स और लार्ज टाउन्स को कनेक्ट किया जाए, और इसी तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सकती है. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सर. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सच अर्बन एक्सपेंशन इज कि आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ही वाज टेलिंग मी कि जो मुल्तान डीएचए है वो बेसिकली जो मैंगो का एग्रीकल्चरल प्राइम लैंड है उस पे बन रही है. So I think these are the sort of things that we shouldn't allow, and I think that could only take place once we have a very integrated and holistic strategy for cities and towns. तो एक बात मैं जो आपको जरा जिक्र करना चाहता था, आपकी यही बात आपने जो कही, जो बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एरिया है, वो ये है कि ये सब कुछ जो हम करना चाहते हैं इसको फाइनेंस कैसे करेंगे. और उसके लिए सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो लैंड है. लैंड मैनेजमेंट, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपैक, कि इसमें हम जो पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी 15% एरिया में 85% पॉपुलेशन है. सो वी नीड टू ओपन अप दोज एरियाज वेस्ट ऑफ इंडस, ताकि वहां पे जो trade route Sir, we'll come to this aspect in question answer session, because हमारा time भी speaking का complete हो गया है, and I think there is we have very distinguished people in our participants, from politicians to top business executives and think tank professionals, some from the government agencies as well. So we'll have a very interesting question answer session. But before I open the floor, I would like to invite Amir Hashmi Saab, who is the president for Global Think Tank Network, to give closing remarks, and फिर उसके बाद हम question answer पे आ जाते हैं. Hamza, can you hear me? जी आमिर भाई. So I want to thank all the speakers for an excellent overview of the policy of urban planning, and to relate it to your topic, CPAC and SEZs. One comment and a question that
can be sent over to your session on the Q&A side, and any of the speakers can answer it. One is we have a golden opportunity, and I want this to be in the notes of the proceedings that come out of this webinar, is the world economy. I think all the data is available for all the thinkers and policymakers and government officials on this call, as well as Pakistan's economy. So right now you've got in geostrategic relationships, CPEC is on the move. BRI may have slowed down. That's apparent to some countries, but in some areas BRI is moving. CPEC is the #1 project. I feel, and it's an institutional feeling from our think tank GTTN, as well as a lot of related policymakers and global thinkers that are connected with GTTN, that you have an excellent opportunity during this 1 year to, there's been a lot of planning on SEZs and a lot of policies already built. There is, I believe, right under the Prime Minister's Secretariat, under the BOI, is the SEZ a whole division that's to work under the Prime Minister. So a recommendation that should be going out from the policymakers on this is to, on war footing, and I really mean war footing, because a lot of work has been done, to set up SEZs professionally and invite the diaspora that have the technical knowledge to help the country on all the areas of development, whether they're aligned to SDGs, UN SDGs, or our own Pakistan's priorities. They're out there, they have knowledge, they have money. So the reason Shenzhen was developed is the top companies all over the world came in to share their research and manufacturing capabilities with the local Chinese bodies, and the Chinese invited the diaspora. So this is extremely significant. I think the most important takeaway with urban planning, of course, more cities, Dr. Asad has mentioned, Dr. Naveed has mentioned, Dr. Asia and Dr. But that our policy framework also be done on work. There's no reason to wait for this. The global economy is down. You have a strategic partner, and we must continue with this. So the question I'd leave for the forum is, what, in your experience, is the best way to make this one of Pakistan's most prioritized national development agendas? Thank you, Hamza. Thank you, Amir Bhai. And I think your question is sort of relevant to all four speakers, but I will address this to Bhatt Saab and Asad Saab. So पहले Bhatt Saab अगर आप जो है इसका reply दे दें the question. Yeah, thank you so much. And I would invite me for the answer of this question. I'll just briefly talk about each one of the aspects that has been highlighted. Initially, coming to the SDGs, I would just like to state that initially जब पाकिस्तान को कहा गया कि आप SDGs, number of SDGs and sites indicate करें, then like any political economy, we stated that we would like to have 37 SDGs under the umbrella of CPEC Industrial Corporation. And then when we went to China for this discussion, the Chinese said that perhaps that's beyond your capacity at this point, क्योंकि आपके जो existing SDGs हैं या economic zones हैं या industrial strain है, for the want of utilities, they're not doing as they're supposed to do, and now they're actually burden on the public sector exchequer. So then we decided that yes, we should come down to one SEZ each, और आपको ये देख के अंदाजा हो provinces के SEZs are at various stage of development, say at planning to inception to groundbreaking to actually delivering, but जो एक अभी तक कागजों पे नहीं है वो है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के jurisdiction पे. So this is an interesting research area that I am giving to all of you. Provinces के अंदर each one of the provinces led by BOI, ये clearly that's been acknowledged across that we need SEZs, and we need SEZs to create that ink spot development.
excellence from where have increased, just following, emulating China perhaps from east to west. उसी तरह ही हम पहले close to urban centers हम इनको develop कर लें and then gradually moving to less developed areas. इसीलिए अभी right now we SCCs, and I'll speak on behalf of KP and largely on CPEC. We're working on special economic zone, and we are the only province which is doing it in public-private partnership with Chinese. So we are expecting कि जो हमारा SCC है, which perhaps after groundbreaking in next couple of weeks, would be phase 1 would be completed. हमारे पास एक steel का investor already आ चुका है. So we are expecting कि हमारा SCC would be one of the best amongst all the other 9 that we have within the CPEC framework. इसके साथ साथ हम और भी कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं, including the foot and mouth disease free zone या agri based SCZs पे. Similarly, following from the advantages that we've had from SCZs or we can have, we are also working on integrated tourism zones, and this would also be somehow related to not urban development or urbanization, but would create new zones of say excellence in tourism, which will perhaps accelerate the rural economy, which is largely agri based. अच्छा, एक बात अभी ये हुई है recently, and this is again I'm speaking on behalf of the government, provincial government, कि COVID has made us to realize that agri-based economy or rural economy concurrently and perhaps at the same speed with which we are developing our urban growth and economy. And I also have a feeling, and this is not based on any empirical data, but this is based on some of the discussion that I have had during this process of investment and industrialization, that perhaps this urbanization might take place if the COVID extends and these restrictions remain for a period, perhaps December and beyond. And that is one reason. SCZ wise, I think Chinese also realize कि हमारे लिए बहुत important है. In our discussion at each forum, from down to our level at operation level, we have had extensive discussions with the Chinese, and we are looking at how to have a model जिसके अंदर we can develop our vocational training requirements also within those SCZs, also create a kind of better urban housing within those SCZs, and then perhaps around the Naya Pakistan housing project. Lastly, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कुछ हमारे, because we are in a political economy, कुछ decisions ऐसे होते हैं जो कि मतलब वो impact भी करते हैं आपके development process को. But having said that, I think जो digital या e-governance का processes आ रहा है, जो requirement आ रही है from public sector employees, जैसे जिस तरह उनकी performance को view किया जा रहा है, I think overall आपकी जो planning processes है वो भी improve होगा, क्योंकि आप जितने भी customers होते हैं from public sector enterprises या employees, वो एक certain performance expect करते हैं, और unless we do not perform as per their requirements, उसके आजकल social media में and otherwise वो challenges भी आते हैं. So I am quite optimistic the way that we are going. I think ये जो आपने बात की और हम केपी के अंदर बहुत ज्यादा realization है political leadership में, which is quite pragmatic I must say, and also bureaucracy में, कि हमारे पास, and they've suffered for last so many years because of insurgency, कि हमने केपेक, सीपेक, पख्तूनख्वा इकोनॉमिक कॉरिडोर से फायदा उठाना है, and we cannot miss this boat because we had missed earlier जब एशिया के अंदर इकोनॉमिक रिसर्च आ रही थी
लेवल की, तो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी थी इन दिस रीजन और वी मिस दैट चांस, परहैप्स नाउ वी विल नॉट मिस दिस चांस। और आप देखें और अगर आप फॉलो करें some of the activities in terms of ease of doing business, some of the activities in terms of compete कर रहे हैं पंजाब और सिंध से, although उनके पास बहुत अच्छे developed urban centers, and hopefully जब ये ease of doing business का, and I was in a meeting today, a lengthy meeting actually, जिसके अंदर हम one window operation या digital portals और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कंसेंसस था कि इसको सूनर देन लेटर किया जाए। सो परहैप्स गुड थिंग्स आर हैपनिंग एंड देयर इज सिल्वर लाइनिंग एट द एंड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू भट्ट साहब फॉर द डिटेल्ड ओवरव्यू एंड आई केम टू यू फॉर द क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक वो रेलेवेंट था आपके। मैं जो है यही सवाल मेरे ख्याल में इस सवाल के ऊपर हम 2-3 और सवाल जो है वो स्टैकअप कर लेते हैं और उसके बाद जो है वी कैन सॉर्ट ऑफ टेक 3 क्वेश्चंस एट अ टाइम। अगर सारों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप जो है वो पार्टिसिपेंट्स पे, आपके विंडो पे पार्टिसिपेंट्स आ रहा होगा, इफ यू क्लिक ऑन द पार्टिसिपेंट्स तो नीचे जो है रेज हैंड का ऑप्शन आता है, सो वो रेज हैंड आप कर लें तो आई विल गेट सम सॉर्ट ऑफ विजिबिलिटी ऑन हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन, ताकि वो हम जरा ज्यादा तेजी से कर सकें। ये अली काजी साहब काइंडली अगर आप क्वेश्चन पूछ लें। जी, कैन यू हियर मी? जी जी, हल्की सी काजी साहब इंट्रोडक्शन दे दें, बहुत शॉर्ट सी, एंड देन आस्क द क्वेश्चन। I will. Thank you very much. My name is Ali Zafar Kazi, and I'm an architect by profession. I'm the immediate past president of Institute of Architects Pakistan, and I've been on the Prime Minister's Naya Pakistan Housing Task Force for some time. I want to congratulate you on holding this. Asad Saab and Bhatt Saab and Naveed Saab and all these learned people who are here. The members of our institute are also on this. Kabir Malik is there, and I think Nimra is there. मैं एक थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ of my take on urbanization and where it is going, particularly vis-a-vis our profession and what we can bring to it. बिल्कुल काजी साहब, इसमें मेरी जो रिक्वेस्ट होगी वो ये होगी कि थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ रख सकें, क्योंकि a lot of questions I understand. Thank you. I'll हम जो urbanization को जिस तरह urban design को और urbanization को जिस तरह understand review किया है, unfortunately the task force which was formed was full of people from allied sectors, but the stakeholders, bankers थे, real estate people थे, आदाब के लोग थे, आबाद के लोग थे, all sorts of other World Bank people and all sorts of other people, but the buck starts at the design part of it. So one has to understand what urban planning and urban design is vis-a-vis community development. You can't have a 50 lakh घरों की housing scheme without understanding your end user and understanding कि ये actually ये process manual for this has to be written. So हमें मालूम करने पे ये पता लगा कि जो पाकिस्तान की हाउसिंग पॉलिसी जो आखिरी लिखी है 2001 की लिखी हुई है और ये 2020 में हम हैं इस वक्त, और उसके बाद थोड़ा सा मुझे ये फील किया कि they're all important stakeholders, bankers are required, World Bank people are required, all sorts of developers are required, but the document that has to be prepared, the preliminary, जैसे गाड़ी के लिए आप एक मैनुअल बनाते हैं ना कि गाड़ी खरीद के इसको इस्तेमाल कैसे करना है. Unfortunately, that manual has not been written vis-a-vis social housing and what are the needs. Social housing जितने मर्जी आप अपार्टमेंट्स बना दें, जब तक आप कम्युनिटी को enable नहीं करेंगे ना जिनके लिए आप वो घर बना रहे हैं, it will never be successful. So you have to look at the whole problem as a community development problem rather than फिर urban और जो रूरल हाउसिंग उसमें जमीन आसमान का फर्क है,
और urbanization जो है, in fact, in the West, now people are moving away from, packing the cities. There's a limit to the size of a city. You cannot keep growing cities beyond a certain limit. Urban sprawl की आपने बात सुनी होगी या आपने और बहुत से चीजें सुनी होंगी. So I want your experts to kindly, any one of them, give me a take on where are you putting the professionals in this equation. Thank you. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू काजी साहब फॉर द कमेंट एंड द क्वेश्चन. ये डॉक्टर नवीद साहब से जो है वो मैं एंगेज करना चाहूंगा, बट लेट मी आस्क अदर क्वेश्चंस एज वेल. अगर डॉक्टर नुसरत खान एंड आफ्टर दैट मिस्टर हबीब पराचा, इफ यू कैन आस्क दीस क्वेश्चंस. योर क्वेश्चन जी. जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर नुसरत खान. I'm basically a Director General for National Institute of Oceanography. I have a comments and a question and observations both. I'm not a person who is urban planner, but I have a good observations. I've been visiting Gwadar several times. I discuss the issues for urban planning and the sanitation in Gwadar, but I wouldn't get a good answer on that. Maybe you people are the focus for CPAC and the urban planning. The Gwadar is developing very rapidly, but unfortunately, the beaches are getting very filthy, like sea view. And if we are not taking care of the sanitation and the planning, so we might ruin up our golden assets there, the livelihood and the ecosystem, especially the marine ecosystem. If somebody can answer it, and maybe taking care of it as well. And the second question in the comments and observation is Karachi, the CU, the development for development, and we are facing problem with the waste running on all beaches. So this is my observation and comments and questions. Thank you. बिल्कुल ठीक है. Thank you, Dr. Nusrat. Habib, kindly, Dr. Naveed Saab will answer your question because he has worked on Gwadar master plan as well. तो नवीद साहब, आपके दो सवाल हो गए. एक तो ये कि how are we engaging different professionals from diverse sectors and sort of coming up with some sort of manuals in terms of जो housing project भी हो रहा है और उसके अलावा भी urban planning. Thank you, Hamza. Yeah, sorry. May I go ahead? Yeah. Thank you. First of all, very informative discussion. So congratulations. I have a question to your esteemed panel with regards to what they're talking about city planning. Barring Islamabad, since our independence, I don't know of a single city which has been. Barring Islamabad, I don't know of a single city that we have gone and designed as a new city. And agar aap Islamabad ko dekhen, that was done in planning of that was done in the 60s. So when we say that we don't have the capacity, I generally think that may not be the reason, because I was looking at statistics from China, for example, and according to a 2013 survey conducted by the Beijing National Development Reform Commission, in 12 of the 32 provinces, 200 new towns have been developed. So one of the main reasons we have pressure in Pakistan is that we just simply want to expand the cities that are already in existence rather than going out and developing completely new cities. So जो आपकी SEZs हैं, उनमें भी यही issue आ रहा है. Similarly, when you look at land allocation, a lot of the land that is allocated is being taken over by investors and all, where it's not being genuinely utilized for what purpose it was earmarked for originally. You will have, in my opinion, the same issue turn up in GDA as well, because already if you look at the master plan, approximately 70-80% of the land is in private hands. So even if I want to come in as an investor, how do I get access to land? Because one of the major incentives that a government can give is you give land on some sort of concessional basis, etc. When all the land becomes available in private hands and a party has to negotiate with private individuals for the fair value of it, etc., what incentive is the government going to be able to give? And if you're not able to give that incentive, why should someone come? So if your panel can. Thank you. Hamza, I would like to later, when Naveed Saab is over with this question, I would like to answer Habib Paracha
Saab's question for two reasons, which I will also explain later the reasons. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So Dr. Naveed साहब, पहले जो है if you can answer the questions directly to you, और उसके बाद we can take this discussion forward. और उसके बाद सॉरी नवीद साहब के बाद असद साहब, आपका बड़ा छोटा कमेंट जो है वो required होगा on how political economy has become the biggest challenge for Pakistan's development, especially in the context of SEZ. या हमारे सारे speakers या comments में वो hint होता है कि जिस तरह 18th amendment हमने पास किया हुआ है और उसको एक हमने जो है ना वो होली डॉक्यूमेंट बना दिया जिसको टच नहीं किया जा सकता. बट अगर हम SEZs का केस देखते हैं तो 3-4 साल का डिले सिर्फ इस वजह से आ रहा होता है क्योंकि फेडरल और प्रोविंसेस जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में ही इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं. तो उस पे मैं आपके कमेंट चाहूंगा आफ्टर बट साहब. तो डॉक्टर साहब, इफ यू कैन, डॉक्टर नवीद साहब, इफ यू कैन काइंडली कंटिन्यू विद योर आंसर. जी हमजा, आई थिंक जो क्वेश्चन पहले इन्होंने किया था सिटी की गवर्नेंस से रिलेट करता है. तो पहले भी किसी ने बात की प्रोफेशनल्स को एंगेज करने की. तो एक तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो सिटीज हैं, जी सॉरी, जो सिटीज हैं दे हैव टू बी मैनेज्ड कलेक्टिवली. सो पूरी दुनिया में सिटीज जो हैं वो कलेक्टिवली मैनेज होते हैं. और सिटी जो है वो हमारे यहाँ बहुत वर्टिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जो है ना वो हमने रिजिड बना दी हुई है. ये उसका मैंडेट है, ये उसका मैंडेट है. सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द गवर्नमेंट हैव टू कम टुगेदर टू वर्क ऑन सिटीज. तो उसमें ये नहीं है कि ये उसका मैंडेट है. मैंडेट्स के ऊपर डिस्कशंस और डिबेट्स होती हैं, बट दे हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, फेडरल से लेके प्रोविंशियल तक. सेकंड, जो प्रोफेशनल्स वाली बात है, अगेन इवन ऑन द कलेक्टिव गवर्नेंस आई वुड से कि सिटीज जो हैं उनके अंदर कलेक्टिव इनपुट मल्टीपल डिसिप्लिन्स की चाहिए होती है. जैसे अभी दुनिया भर में जब सिटीज को रीडिजाइन किया जा रहा है तो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हैं कि दे हैव दैट विजन एंड दे आर बेटर ट्रेन टू एनविजन थिंग्स एज कंपेयर टू इंजीनियर्स आर अस लाइक इकोनॉमिस्ट्स एक्चुअली. सो सिटीज के अंदर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल्स को हम बहुत से शुरू से हर मास्टर प्लान जो है हमारे शहर का, एक तो मास्टर प्लान बहुत रिडंडेंट इंस्ट्रूमेंट है, पूरी दुनिया से ये खत्म हो रहे हैं शहरों से. एंड देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग सिटी विजन एंड सिटी स्ट्रेटजीज. और जो प्लानिंग होती है वो बहुत नेबरहुड लेवल पे होती है. लोकल एरिया डेवलपमेंट कहते हैं, लोकल नेबरहुड डेवलपमेंट कहते हैं. एंड व्हेन वी प्लान एट अ नेबरहुड लेवल, एट अ लोकल एरिया डेवलपमेंट, तो वहाँ सबसे ज्यादा जो कमी है वो लोगों को एंगेज करने की है पाकिस्तान में. तो प्रोफेशनल्स तो हर जगह है पाकिस्तान में. प्रोफेशनल जो है किसी ना किसी तरह किसी कमेटी का हिस्सा है. अभी भी आपने देखा है हर बंदा कह रहा है कि वो नया पाकिस्तान हाउसिंग टास्क फोर्स के मेंबर हैं. तो इट मीन्स के हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी टास्क फोर्स एडवाइजरीज बनती हैं जिसमें हम सारे पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं. लेकिन जो अवाम है जिनके लिए वो काम होना होता है वो उस पार्टिसिपेशन में शामिल ही नहीं होते. जो इधर इन्होंने बात की कराची में औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की, इनफॉर्मल इकोनॉमी को एंगेज करने की, गवादर के अंदर सैनिटेशन नहीं है. तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेयर ओनली यू कैन वर्क बाय एंगेजिंग पीपल. तो हमारे यहाँ ये है कि अंडरपास बना दें और ये बना दें, उससे पानी का मसला और क्रिएट हो गया हुआ है. कराची में, लाहौर में हमने ये सोचा ही नहीं करते हुए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेड जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो शहरों के एनवायरमेंटलिस्ट को एंगेज नहीं किया जाता. EIA हर प्रोजेक्ट में खानापुरी होती है और कोई एनवायरमेंट के बारे में सोशियोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं उनको कोई इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता. तो सिटीज के अंदर जो फुकदान है वो लोगों को एंगेज करना वन. सेकंड, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो नीडेड है, जहाँ मल्टीपल डिसिप्लिन के लोग आए, ना सिर्फ इंजीनियर्स या ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस आए या इकोनॉमिस्ट आए. वी नीड सोशियोलॉजिस्ट, वी नीड हिस्टोरियंस, वी नीड पीपल हु अंडरस्टैंड हेरिटेज, वी नीड पीपल हु अंडरस्टैंड द कल्चर. अगर आपने आर्किटेक्ट करना है, मैं अभी हुंजा में कुछ काम कर रहा हूँ, तो अगर आप हुंजा में देखें तो वहाँ पहाड़ के ऊपर आप जब बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो यू आर एक्चुअली कम्पीटिंग विद द माउंटेन. So you don't need to compete with the mountain. So that only one can tell you जो उधर लोकल बंदा है कि भाई हमें किस किस्म का आर्किटेक्चर चाहिए. So जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स है ना, वो जो विलियम ईस्टरली की बुक है टिरेनी ऑफ एक्सपर्ट्स जो है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो है ना वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियंस, वी डोंट हैव पीपल इन्वॉल्वमेंट. एंड लास्ट बात जो है ग्वादर के अंदर भी यही हो रहा है. एवरी वन ऑफ अस इज CPEC एक्सपर्ट इन पाकिस्तान एक्सेप्ट पीपल लिविंग इन ग्वादर. तो वो जो है उनका पानी का क्या मसला है, उनकी क्या हालात हैं, और जहाँ GB में एंटर हो रहा है GB के लोग क्या चाह रहे हैं, और जहाँ एंड हो रहा है CPEC, वहाँ इन दोनों लोगों के अलावा दरमियान में सब CPEC एक्सपर्ट्स हैं. तो मैं समझता हूँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है. और बाकी जो है वो जो नए सिटीज वाली इन्होंने बात की, दैट्स क्वाइट कंट्रोवर्शियल डिबेटेबल टॉपिक है.
इस्लामाबाद में भी हमने कोई बड़ा मार्का नहीं मारा हुआ. देयर आर मेनी फ्लॉज इन इस्लामाबाद प्लानिंग एज वेल. सो लेकिन लास्ट बात मैं सिर्फ ये आपसे करूंगा कि जब हम SEZs या न्यू सिटीज की बात करते हैं, चाइना की एग्जांपल देते हैं, तो सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो चाइनीज न्यू सिटीज में था वो उनकी गवर्नेंस था. दैट वाज अ गवर्नेंस एक्सपेरिमेंट. दे एक्चुअली डेवलप्ड अ डिफरेंट गवर्नेंस मॉडल फॉर दोज SEZs. हमारे यहाँ SEZs के अंदर जो है वो उतने ही मसले मसाइल हैं जितने बाहर शहर में हैं. शायद SEZs में ज्यादा हैं और बाहर शहर में फैक्ट्री लगाना ईजियर है. सो जब तक आप वो नहीं बनाते कि भाई SEZ का मतलब फिर SEZ है, that's what we need to have. So this is something that's important. आप 50 SEZ बना लें या 100 बना लें, अगर आप उनकी गवर्नेंस डिवॉल्व नहीं करते, प्रोफेशनल मैनेजमेंट why should they come to BOI any province? आपने एक दफा सूबे को दे दिया, बस go on and develop it. कंस्ट्रक्शन परमिट आपने SEZ से ले लिया, why then SEZ people ask them go and get from फैसलाबाद सिटी गवर्नमेंट. आपने FBR से जो है वो कस्टम से अगर लेना है तो वो कस्टम से जो है वो वहीं पर ऑथराइज करें उस मैनेजमेंट को, क्योंकि यू आर द वंस विल गिव सर्टिफिकेट्स. तो अगेन फिर 50 जो है वो आपने इंसेंटिव दे के भी हर एक की फिर अप्रूवल लेनी पड़ती है. दैट्स अ सेपरेट प्रोसेस. इस तरह ना SEZ कामयाब होते हैं ना नए सिटीज होते हैं. बिल्कुल ठीक है. बट साहब मैं आपके पास, sorry Hamza, being an architect it's very difficult for me not to jump in because जो सवाल है और जो आई थिंक बाकी तो सब नवीद साहब ने वही बातें कही हैं जो मैं कहना चाहती, बट आई वुड नॉट रिपीट. द ओनली थिंग इज जो मैनुअल बनाने वाली मेंटालिटी है व्हिच इज लाइक वन सॉल्यूशन फॉर ऑल, वो भी बहुत एक आउटडेटेड फिनोमिनन है टू डू विद एनीथिंग. हमें अपने जो आइडियाज ऑफ प्रोफेशनल डिजाइन मेकिंग या हाउसिंग को जो अप्रोच करने की जरूरत है, दैट आल्सो हैज टू बी रिसर्च बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड. वो सोल्यूशन जो आप गवादर में देते हैं वो कराची में नहीं चलता, जो कराची में देते हैं वो लाहौर में नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ द लोकल कम्युनिटी, their capacities, and above everything the land market which is operating over there. So I just wanted to say that one solution for all, in my opinion, and generally, Hamza, can I add to this, please? question doesn't work. काजी साहब, we are short on time क्योंकि बट साहब ने भी देने short point. जी. I agree with what has just been said. मेरा point सिर्फ ये है कि आप जो end user की is what the important thing. When you want to plan, this is exactly what all designers would say कि आपके जहन में गवादर का end user फर्क है, सवात में फर्क है, कराची में फर्क है, urban फर्क है, rural फर्क है. So you have to know who you are planning for. When we talk about a policy document, the policy document has to say, when you're talking about providing for the poorest of the poor, let's say, या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जो एक थीम थी प्राइम मिनिस्टर साहब की कि हमने अपने गरीब लोगों के लिए घर बनाने या उनको हाउसिंग प्रोवाइड करनी, तो उसमें डेवलपर्स कहाँ से जंप इन कर जाएंगे, या बैंकर्स कहाँ जंप करेंगे, लॉयर्स कहाँ जंप इन करेंगे डे वन, इज समथिंग दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू काजी साहब. वो विल पार्टली एड्रेस दिस क्वेश्चन विद असद साहब. बट साहब, इफ यू कैन प्रोवाइड कमेंट्स ताकि फिर मैं असद साहब से फाइनल कमेंट्स जो क्वेश्चन किए हैं. Before I provide my comments to you, I would just like to congratulate Habib Paracha for launching his 5th movie as the executive director. Habib Paracha, I think you will invite us on the red carpet of Heart Kill. It's been a long time watching any Gora actors. Quite unexpected, but thank you. I appreciate the good words. We are really proud of you for what you're doing, back there, and this is your 5th movie and brilliant work, sir. And next time a script China Pakistan wise is ready with me, so when you come to while I assure you provisioning of land, I'll also give you a script based on CPEC free of cost. Looking forward, Ji. I'm actually in Karachi, so I'll approach you separate of this thing so that we don't take everyone's time right now. But thank you very much for your kind words. Brilliant, sir. So coming back to your question, and also the other question regarding the political economy and how is that impacting our overall scheme of things. I think in whatever governance structure you have, there are always
some positives and there are always some negatives. आप जब भी कोई काम करेंगे तो आप उसका SWOT analysis कर लें and based on that आप उससे result accrue कर लें जो भी आपकी end state in mind है. But for the most important thing is to have that end state in mind. Otherwise आप each year you have this yearly planning done by planning commission. We have this 5 years plan like the Chinese do. हम चाइना को बहुत सारे दफा एग्जाम्पल देते हैं. Since I was a diplomat, I have always loved talking about it. But I have been to North Korea also as a diplomat, and believe me that their urban planning and their infrastructure is far superior to what we have, and they perhaps economy-wise are the weakest in Asia, and of course in the larger Belt and Road Initiative scheme. So जब हमने CPEC की प्लानिंग की शुरू में सर, एंड जब चाइनीज के साथ हमारी 2013 ऑनवर्ड्स मीटिंग हुई, मैं उस वक्त चाइना में थे, देन आई केम बैक. SEZ लोकेशन जो है नेचुरली हमारे लिए एक पॉलिटिकल उसका बैकग्राउंड होता है, एंड वी पिक एंड चूज प्लेसेस वेयर इट सूट्स बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स. लेकिन उनका ये ख्याल था कि आप कोई भी जगह चूज कर लें, उस नेचुरली हमारा जो टेरेन है KP वाइज या अदरवाइज से अक्रॉस द इंटायर कोस्टल बेल्ट, वो उसके अंदर नेचुरल एंडाउमेंट है और उससे उसको लेवरेज किया जा सकता है. से फॉर एग्जांपल KP वाइज अगर आप ईस्ट ऑफ पिशावर चले जाएं तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इंक्लूडिंग टोबैको and many other which I can't perhaps speak on this social media. And then if you go westward, you'll find a lot of minerals resources. So that is not an issue. So political economy is never an issue. We would hardly find for those countries which say they do not have political economy, even there the decision is based on politics. So let's not worry too much about that. हमारे यहाँ जो लैंड की एक्विजिशन है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तमाम प्रोविंसेस में है. अगर आपकी लैंड एक्विजिशन जो है वो अगर ऑन अ प्राइवेट फॉर अ इशू हो तो द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सपोज्ड टू सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड डू देयर हैंड होल्डिंग एज आई सेड अर्लियर. लेकिन इसके अलावा व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई सेड दिस इन टर्म्स ऑफ डिजिटल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, अब हम सब और हमको फेडरल गवर्नमेंट ये रिक्वायरमेंट है कि हम अपने डिजिटल पोर्टल्स बनाएं जिसके अंदर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको करें इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. और अभी KP के अंदर मैं उस पर बहुत मेहनत कर रहा हूं कि वो बन जाए. सो व्हेन यू प्लान टू इन्वेस्ट, एंड आई वुड से दिस फॉर ऑल, जैसे पंजाब भी और सिंध भी, इस लिहाज से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर नाउ रेडी टू सपोर्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. लेकिन लैंड एक्विजिशन चैलेंज होता है और ये ज्यादा चैलेंज होता है हमारे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां पे हम जब सेक्शन 4 लगाते हैं तो प्रोजेक्ट जो है वो लिटिगेशन में चला जाता है, और बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड लिटिगेशन प्रोसेस वो इतना टाइम ले लेता है कि हमारा प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट ओवररन्स आ जाते हैं और टाइम ओवररन आ जाते हैं. तो उसकी वजह से ये इशू है. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अब अच्छा ये इशू अगर आप हमारे लिए यूलिमाई डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएं तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज वहां पर इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग नहीं है. वहां पे जो लैंड होल्डिंग है वो कॉम के पास होती है. अगर आपने if you want to get a mine leasing contract, it becomes an ordeal actually in terms of first connecting with the right owners and also then later getting the right kind of NOCs and all the other prerequisites. So this is I agree it's easier said than done. लेकिन मैं बिल्कुल आपसे ये बात जरूर कर रहा हूँ कि चूंकि अब आम ये न्यू नॉर्मल है, चाहे वो कोविड की वजह से हो या बगैर कोविड के हो, उसके अंदर ये जो आम ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो काम नहीं कर रहा. तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट वाइज तमाम सूबे आपस में कम्पीट कर रहे हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना. फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं ट्रेड
को बढ़ाने का अफगानिस्तान, आपके जितने भी ट्रेड बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वहां पर इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। अब आप इमेजिन करें, ट्रेड की बात हम करते हैं और क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ऑप्टिकल फाइबर एंड एक्सेट्रा, तो उस लिहाज से जब आप बात करते हैं यू नो लर्निंग फ्रॉम होम इन कोविड एनवायरनमेंट, जस्ट इमेजिन वो लोग जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में है और उन बेचारों को पिशावर आना पड़ता है जस्ट टू अटेंड 1 hour क्लास, और जो बच्चे हैं वो और बच्चियां उससे ज्यादा इशू है। बट वी आर एड्रेसिंग दिस इज गोइंग टू बी एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस, इट विल टेक, चूंकि ये रोड, और मैं एक बात चाइनीज को बिल्कुल, मुझे हमजा से रिमार्क्स देने की इजाजत दीजिएगा। मेरा एंड आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ दिस, और मैं चाइनीज को इस बात में कोट भी करता हूं कि दैट इफ यू वांट टू बिकम रिच यू मस्ट बिल्ड रोड्स। और जब हम रोड मींस रेलवे ऑल्सो, हम जब इसको करेंगे और इससे हमारी इन्वायरमेंट को आता है, इम्पैक्ट आएगा, रूरल अर्बन सिनर्जी आएगी। आप इमेजिन करें, नॉर्थ में एक रोड बनाई थी 145 किलोमीटर्स की, ये खुशाब एक एरिया है ग्वादर के नॉर्थ में, देन इट कनेक्ट्स टू DI1। तो वहां पे जो सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो अबाउट 75% रिड्यूस हो गई थी, एंड इंसर्जेंसी भी ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स पे नीचे गई। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और प्लानिंग को कर लेंगे, मैं तो इस, आई एम सॉरी एंड आई नो देयर एक्सपर्ट्स इन दिस ग्रुप ऑफ एमिनेंट यू नो स्कॉलर्स एंड आर्किटेक्ट्स, लेकिन इसमें मेरा अभी भी ये पॉइंट है कि आप इवन पॉलिटिकल रीजंस पे भी रोड बनाएंगे तो बना लें, उसकी क्वालिटी को बस इंश्योर कर लें कि एटलीस्ट वो 10 साल तक चल जाए। एक बात मैं नवीद साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा इन टर्म्स ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये हो ही नहीं सकता कि वहां के लोकल्स को आप इन्वॉल्व ना करें और प्लानिंग कर लें। गवादर की जो स्टीयरिंग कमेटी बनी थी उसके 3 MNA और 1 MPA इन्वॉल्व थे। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी थी उसके अंदर भी 2 ME थे, और खुद ये बाबर साहब जो मोस्ट वोकल MNA हैं फ्रॉम गवादर, वो उसका मेंबर थे, एंड ही मेड श्योर कि डिसीजंस आर। जहां तक सैनिटेशन का सवाल है और जो एग्जिस्टिंग में जो प्लान एक्चुअल बना है, एंड आई होप यू हैव दैट बिकॉज नाउ इट्स एन ओपन डॉक्यूमेंट, वो उसके अंदर इन चीजों का ख्याल रखा गया है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग विद द कोस्टल हाईवे। इसीलिए जब ईस्ट बे एक्सप्रेस वे डिजाइन किया गया तो उसको ऑफ शोर रखा गया, और वो दिस इज द फर्स्ट 8 किलोमीटर एक्सप्रेस वे 6 लेन जो कि सी के ऊपर है। इट्स नेवर देयर। हम तो मनोड़ा को कराची से कनेक्ट नहीं कर सके, somebody and only Karachiite would understand what I mean. तो इस लिहाज से ये है। अच्छा, एक चीज मैं लास्टली अच्छी बताता जाऊं फॉर दी ऑल दी आर्किटेक्ट्स वर हियर, कि अब हमने रिसेंटली, और आई एक्नॉलेज द ब्यूरोक्रेसी फॉर डूइंग दैट, उन्होंने ये किया है कि जो अभी हमारे लोकल गवर्नमेंट का जो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया है उसमें उन्होंने ड्राफ्टमैन के साथ आर्किटेक्ट्स को हायर कर लिया है। सो नाउ वी हैव दीज यंग आर्किटेक्ट्स, एंड यू नो सो प्लीजिंग टू सी के उसके अंदर फीमेल और यंग मेल आर्किटेक्ट्स हैं जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा हैं और कंट्रीब्यूट करेंगे। सो एक तो जॉब ओपनिंग उनके लिए हुई और हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो रहा है। तो ये, और आप अगर आप रिसेंट जो ब्यूरोक्रेसी है और जो नई क्वालिटी ऑफ इंटेक दैट वी आर हैविंग उनसे इंटरेक्ट करेंगे, यू विल फाइंड देम कि वो ज्यादा एंटरप्राइजिंग और प्रेगमेटिक है एज अपोज टू द जनरेशन विद हैव, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू असद साहब एंड द प्लानिंग दैट वाज डन। अभी हमारा प्लानिंग कमीशन वैसे काम नहीं कर सकता जैसे वो हिस्टोरिकली करता रहा है। इट हैज टू बी ऑन। और मैं एक चीज लास्टली, अब बहुत, ये तीसरा लास्ट हो गया, वो ये है कि जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है ये रीजनल इंटीग्रेशन और कनेक्टिंग विद लार्जर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, चाहे चाइना। उससे ये होता है कि आप इस प्रोसेस से सीखते बहुत हैं। आप एज लेस डेवलप्ड नेशन के पास सीखने की कैपेसिटी बहुत है, और इसलिए मैंने एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीपैक ये इंश्योर किया था कि हमारे जो R&D इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लिंक अप कर दिया चाइनीज के पास, क्योंकि उनका एक R&D इंस्टीट्यूशन का बजट जो है इज अबाउट ऑलमोस्ट द बजट ऑफ HEC।
और इस तरह आप ये लिंकेज डेवलप हो रहा है। हमने अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूट को कनेक्ट किया है, हमने नस्ट को कनेक्ट किया है, हमने जितने भी बिजनेस स्कूल्स है, टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स इंक्लूडिंग लम्स एंड IIM साइंसेज, उनको वहां के टॉप 5 बिजनेस स्कूल के साथ कनेक्ट किया। सो दिस इज हैपनिंग, बट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। मैं आपको अश्योर करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ KPBOIT कि अगर आपको किसी किस्म की हैंड होल्डिंग, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन फॉर KP एंड बियॉन्ड, बट लार्जली फॉर KP चाहिए, यू हैव, आप हमारा वेबसाइट को विजिट करें, यू विल फाइंड इट मोर मच बेटर देन द गवर्नमेंट वेबसाइट दैट यूज्ड टू बी। हम बदल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, बट trust me, it will be faster than what you are all expecting. Inshallah. Thank you, Hassan Saab, for inviting all the participants to reach out to you if there is any information. And I'm sure I have been through the website. It's a wonderful revamp, and I hope that the process of improvement continues. Asad Saab, मैं बिल्कुल आखिर में let it be the last comment as well. इसमें दो चीजें, एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो है वो मुख्तलिफ टेक्स हैं, तो व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एट प्रेजेंट एज वेल एंड हिस्टोरिकली एज वेल एट सब नेशनल लेवल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सिद्रा इमाम साहिबा है, MP ये है PTI की सिंध में, उन्होंने जी वो पूछा है कि व्हाट आर द मेन रोड ब्लॉक्स इन लोकल गवर्नेंस, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसके आपने जो है वो जिक्र भी किया, और जो है आसिया ने भी जो है वो एक पैरेलल सिस्टम जो कि कराची में बत्ता लेवल पे चल रहा था, टू सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड जस्ट द सिक्योरिटी बिकॉज गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी वाज पुअर, एंड देयर इज ओवरऑल कंसेंसस ऑन के जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो होने भी चाहिए, और जो है वो ट्राई भी किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। तो first question is the role of local government in overall governance and urban development, and the second is the role of political economy at sub-national level. So, for instance, one of the example would be कि जब हम नवीद साहब ने वो किया और भट्ट साहब भी जो है to a certain degree जो है वो इससे agree करेंगे कि हमारे उसमें इवन जो SCZs हैं या इनिशियली जब इंट्रोड्यूस हुए BOI पे, अभी तो वो काफी ज्यादा रिफॉर्म हुए हैं, बड़ी सारी डिस्कशंस हुई हैं, बड़ा सारी बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग हुई है, बट हमने SCZ को लाके दोबारा से उस पर 20 परमिशंस लगा दिए, तो वो एक बड़ा मुश्किल फेज होता है, एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन या नेशनल लेवल पे वो होता है और वो ट्रांसलेट होता है सब नेशनल लेवल पे, तो अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स वांट ओनरशिप, and SCZ sort of is designed in a way कि वो bureaucracy खत्म करे, but at the same time there is a dilemma कि वो local ownership भी जो है वो चाहिए होती है, क्योंकि वो एक specific region में या किसी specific शहर में आ रहा होता है। तो इस पे जरा सा मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे इन दो एस्पेक्ट्स पे जो एक क्वेश्चन है। थैंक यू। असद साहब म्यूट है आप। ये मैंने तो अब आ रही है आपको आवाज? जी जी आ रही है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि एक जो आमिर राशिद साहब ने सवाल पूछा था ना कि CPEC और जो करंट एनवायरनमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मेरा ख्याल उसके जवाब में थोड़ा सा इजाफा करने की जरूरत है, और वो ये है कि आई थिंक दैट जो SCZs हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एफिशिएंसी और कम्पेटिटिवनेस के ऊपर करें, क्योंकि दुनिया में अगर हमने कम्पीट करना है तो वो इनएफिशिएंसी के साथ नहीं हो सकता। मैंने शंघाई की डेवलपमेंट में 10 साल के करीब काम किया है, और I think that there is need for building partnerships between Pakistan and other success stories. उनसे लर्न करने की जरूरत है, और जनरली हमारा जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी से स्टार्ट होते हुए, वो ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स का स्टाइल है कि रोड ब्लॉक्स क्रिएट करना rather than कोऑपरेटिव मोड में काम करना। So we need to build partnerships। और दूसरा SCZ के लिए जो बहुत जरूरी है
वो ये है कि उनको नेशनल नेटवर्क से और लोकल नेटवर्क से जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और पर्टिकुलरली आई थिंक जो अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है तो हमें लॉन्ग हॉल के लिए रेलवेज की डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू लिंक इट with that development and other transportation networks. Now coming back to your other two questions, number one, local government का जो है unfortunately